تو بڑی عجیب بات ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو اب آپ کا کیا سوال ہے جی؟ میڈم کیا کہیں گی, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 4 مسلم لیگ نون کی شخصیات نے جو اہم شخصیت سے ملے ہیں نواز شریف کا پتہ صاف کرنے کے حوالے سے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے کہ کارکردگی اتنی بری ہے, یہ بھی کہنا زیادتی ہے کہ کارکردگی بری ہے. کارکردگی ہے ہی نہیں. جہاں نااہلی, نالائکی, مہنگائی, بے حسی, لاقانونیت کے فیلئر کے انبار لگے ہوں, وہاں وہ ایسے خبریں نہ پھیلائیں, ایسی خبریں کریٹ نہ کریں, ایسی خبریں فیبریکیٹ نہ کریں. تو کیا وہ میڈیا کو یہ کھلی آزادی دے دیں کہ میڈیا جو ہے وہ مہنگائی پہ بات کرے, میڈیا جو ہے وہ لاقانونیت پہ بات کرے, میڈیا وہ گیس, پیٹرول, ڈیزل کی, بجلی کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس پہ بات کرے, یا وہ پھر مری کی بے حسی پہ, مری والا جو سانحہ ہوا ہے اس کی بے حسی پہ بات کرے, یا پھر میڈیا اس پہ بات کرے کہ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی سے کچھ 4 لوگ ملے اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ کی کیبنٹ میٹنگز میں, آپ کے جو اسمبلی کے سیشنز ہیں اس میں آپ کے ممبرز, سٹنگ ممبرز, ایم این ایز, ایم پی ایز کھڑے ہو کر اپنی قیادت عمران خان کے خلاف, پارٹی کے خلاف, آپ کی پرفارمنس کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اگر اس قسم کی فیبریکیٹ نیوز نہ کی جائے تو وہ اور کیا کریں بیچارے. وہ آپ کو فری ہینڈ تو نہیں دے سکتے کہ آپ ان کو روز میڈیا کے اوپر آپ ان کی نالائکی اور نااہلی کو سامنے لائیں. تو یہ جو ہے نا, یہ ٹیکٹکس یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جس قسم کے ٹیسٹ سے, ٹرائل سے, جس قسم کے جس کو میں عذاب کہوں گی وہ گزر کر آئی ہے, جو آگ کے دریا سے وہ گزر کے آئی ہے, تو یہ حقیقت پوری قوم کے سامنے ہے کہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں, وہ ان آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہیں ٹوٹی. جس قسم کے مقدمات بنائے گئے, جس طرح سے ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا, جس طرح سے لالچ دی گئی, جس طرح سے دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, بدترین حالات اور انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. نواز شریف کا ایک ممبر, ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹا اور نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا. تو یہ حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے, نواز شریف تو اپوزیشن میں ہے نا, بدترین انتقام سہ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے ممبرز ان کے منہ پہ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں, ان کے منہ پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس, ہماری جو ہماری کارکردگی وہ اتنی بری ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. وہ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ ہے حقیقت. تو یہ جو آپ ڈائیورژنز کرتے ہیں نا, یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں, قوم بھی جانتی ہے. یہ میڈیا پہ میڈیا کھیلنے سے یہ سب نہیں ہوگا, سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. میڈم اگر اتنے برے حالات آ چکے ہیں, جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, تو ان ہاؤس چینج ایک آئینی طریقہ ہے. اس حوالے سے اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ شاید اپوزیشن اس حوالے سے جو ہے اب سر جو ہے اپنا جوڑ چکی ہے, مشاورت ہو چکی ہے. تو کب تک ان ہاؤس چینج کو ہم ایکسپیکٹ کریں؟ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں, جب ان کی میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی پینک سچویشن ہے, تو مجھے, اور ان کے وزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس نالائکی, بے حسی, نااہلی سے, تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے. کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا, اور جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم پر رحم کھانا چاہیے. جی مہینہ میم 2 مہینے کچھ بتا دیں, یا مہینوں کا انتظار ہے, ہفتوں کا انتظار ہے, یا سہ کا انتظار؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں, مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں, چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ فوج کا جو ہاتھ
सर पर है, क्या उनका ये बयान भी एक शोशा है या वाकई फौज आज भी सियासत के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है? मुझे तो पहले ये समझ नहीं आती कि इस बात को कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जी कोई और सवाल जी? सवाल कहना है कि अपोजिशन लोग की बजाय 3 लॉन्ग मार्च कर ले, ना उनका कुछ जाएगा ना हम लोगों का, क्योंकि हमने भी अपने दौर में बहुत सवाल जो हैं वो लॉन्ग मार्च के थे, लेकिन उनके कोई नताइज सामने नहीं आते। मेरा तो दिल है कि मैं उनसे ये पूछूं कि आप बजाय इसके कि आप सियासत पे तवज्जो दें, लॉन्ग मार्च पे तवज्जो दें, आप पहले इस बात का जवाब दें कि मरी के अंदर आपकी गफलत की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से, आपकी नालायकी की वजह से, आपकी बेहिसी की वजह से कई ख़ानदान जो है वो अपनी जान से गुजर गए, जान से हाथ धो बैठे। और जब आपके हाथ पे इतना बड़ा खून हो, जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, तो आपको ये ख्याल भी कैसे आता है कि आप इस किस्म के सियासी बयानात दें। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बेहिसी उस दिन दिखाई गई, वो वज़रा ने जो बयानात दिए, ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की 75 सालों के अंदर जब भी अवाम पर कोई क़यामत टूटी, जब भी अवाम पर कोई क़यामत टूटी, जब भी अवाम के ऊपर कोई मुसीबत आई, इन्होंने उसका ज़िम्मेदार, अमवात का ज़िम्मेदार अवाम को ही ठहराया। तो कोई भी सान्हा होता है तो हमें पता है कि अगला जो स्टेटमेंट वज़रा का आएगा वो यही आएगा कि अवाम का कसूर है। वो कसूर जो है एंड में अवाम का निकलता है। और चाहे वो कोयटा में हज़ारा बरादरी की लाशों का मामला हो, उनको कहा गया कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, और यहाँ पर 36 घंटे लोग बर्फ़बारी में दबे रहे, बर्फ़बारी में उनकी कब्रें बन गईं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जब बूट पहनकर अपनी ज़िम्मेदारी का और एहसास करते हुए जब वो सैलाब के पानी में उतरा करते थे, तो एक शख्स ये कहा करता था तकब्बर में कि ये शोबाज है और ये जो है वो शोबाजी है। तो मैं तो इंतज़ार करती रही 36 घंटे, जब लोग मदद के लिए पुकारते रहे मरी में, तो मुझे तो ये इंतज़ार था कि इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ साहब से बूट मांग के तो वो उतरेंगे वहाँ पर और बर्फ़ में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं आपका खिदमत गुजार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बेहिसी क्या है। और फिर उसका भी इल्ज़ाम सयाहों पर आया कि सयाह जो हैं वो सारे मरी की तरफ उनका रुख कर लिया। भाई हुकूमतें इस तरह चलती हैं क्या? हुकूमत को इस तरह चलाया जाता है? आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आपने फोरकास्ट को देखना था, फिर आपको ये पता होना चाहिए था कि इतनी गाड़ियों को मरी में दाखिल होने देना है और उसके बाद रोक देना है। 36 घंटे आप अपने हीटेड कमरों में सोए रहे, आपके हीटर्स ऑन थे जो कि सरकारी खर्च पर चलते हैं। आपको नहीं पता कि गैस की, बिजली की क्या प्राइसेस हैं। आप उसमें सोए रहे, लोग वहाँ मरते रहे, आपको मदद के लिए पुकारते रहे, आप वहाँ नहीं पहुँचे और आपके पास सियासत के लिए टाइम है। बड़े अफसोस की बात है जी। मैडम इसी के साथ मेरा भी सवाल है, आपने कहा कि इंशाल्लाह जल्द, तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत आर या पार होने जा रही है? इससे पहले कि आप हुकूमत के बारे में कहते हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार हो जाएगी, तो अब आप समझते हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार होने जा रही है? जी, मैंने तो आपको ये कहा है कि इंशाअल्लाह ताला दिनों का मामला है। इंशाल्लाह तरीक़ाकार भी आ जाएगा सामने आप सबके इंशाअल्लाह। अगर इन हाउस चेंज आता है और अपोजिशन कामयाब होती है वज़ीर-ए-आज़म को हटाने में, तो सजेस्टेड नेम्स कौन से हैं? पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, या कौन होगा जो आगे आएगा? जीडीए का तो नहीं होगा मैम कहीं? भाई ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बात है। ये तो पहले सबसे जो हमारी कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि इस नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जाए। बाकी ये सब वक्त आने पे तय हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग ये सवाल पूछ पूछ के थकते नहीं? मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। मैडम क्या कहेंगी आप कि पीडीएम की जानिब से बहुत दफ़ा हुकूमत गिराने का जो है काउंटडाउन भी दिया गया, तो आप समझती हैं कि इस बार जो है आवाम भी बड़ी परेशान है, जब अपोजिशन जमातें भी कटी हैं, बजट से पहले कोई काउंटडाउन में हुकूमत जा सकती है? भाई जितनी जल्दी पीडीएम को थी हुकूमत गिराने की आवाम को है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जल्दी इस हुकूमत को खुद है अपने आप को गिराने की। तो इंशाल्लाह जी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उस हवाले से कानूनी जो चारा जो तरीकाकार है वो मुकम्मल किया जा रहा है।
हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किया, उनको करप्ट करार देने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उनको पॉलिटिकली उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उनको फाइनेंशियली ख़त्म करने की कोशिश की, उनको उनके ख़िलाफ़ स्मेयर कैंपेन्स चलाई, उनको फ़िज़िकली भी नुकसान पहुंचाने की, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये हुकूमत उसमें फ़ेल होती आई है और अब ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये रोज़ की बात है। तो ये रोज़ के बहाने हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। ये इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का बाल भी उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुदरत ने ये बात साबित की है, अल्लाह ताला का फजल है। नवाज शरीफ आज भी, अभी एक सर्वे आया है, मैं उसमें आप देख लें, आज भी लोग इस सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद अगर नवाज शरीफ पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, मुस्लिम लीग नून पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, तो इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर तो आपने तनकीद की थी और उन्होंने कहा कि सियासत में उन्होंने बेजा मुदाखलत की है और इमरान खान को सपोर्ट भी की है, तो मौजूदा DGISI के हवाले से कोई शिकायत आपको मिली अभी तक, या जो इतलात मिल रही हैं कि वो न्यूट्रल हैं और एक अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं वो भी अंजाम दे रहे हैं, तो यही बात दुरुस्त है या? देखिए, मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की सक्सेस सिर्फ इसी में है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। हर इदारा अपने आइनी हदूद में, कानूनी हदूद में रहकर काम करे और अगर ये है तो पाकिस्तान की बका है, सलामती है, कामयाबी है। ठीक है जी, थैंक यू। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद में मरीम नवाज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना है कि महंगाई, लाकानूनियत के अंबार लगे हुए हैं। नवाज शरीफ का एक भी MPA MNA नहीं टूटा। हुकूमत की कारकर्दगी बुरी नहीं, कारकर्दगी है ही नहीं। सबूत जब से मांगे गए हैं ये बहाने कर रहे हैं।